Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. So as you know, we have started our series of practical file programs, and in this video, we will discuss a program that is, we have to create a binary file with name and roll number, and after that we have to search for a given roll number and display the name. And if not found, then we have to display the appropriate message. I think this problem statement is very much clear to you now कि हमें क्या करना है. So I know you all are excited how to make this program. Now before starting our today's video, एक छोटा सा काम कर दीजिए. I think अपनी स्वाति मैम के लिए आप ये तो जरूर करेंगे, right? If you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And at the end अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो वीडियो को जरूर देना. And after that, do share your views in the comment section also. So now, without wasting our time, let's start our today's video. Now let's read this again very carefully. We have to create a binary file, right? A binary file name is not given, so then it means your choice with name and roll number. तो हमें सिर्फ बाइनरी फाइल में क्या क्या राइट कराना है. क्रिएट मीन्स वी हैव टू राइट द डेटा इन द बाइनरी फाइल विद नेम एंड देन रोल नंबर. ओनली टू थिंग्स वी हैव टू गेट इट एंटर. आफ्टर दैट वी हैव टू सर्च फॉर अ गिवन रोल नंबर, राइट. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज हम बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करेंगे और सिर्फ क्या राइट कराना है, ओनली नेम एंड देन रोल नंबर. So as you know, in order to write the data in a binary file, we are having two methods. Either we can do it with the help of list or we can do it with the help of dictionary also. So in question it's not mentioned कि आपको कौन से method से करना है. It's your choice now, right? So first I am doing it with the help of list. As you can see, यहाँ पर हमने PyCharm अपना ideally open कर लिया है और यहाँ पर हम एक न्यू पाइथन की फाइल क्रिएट कर देते हैं. लेट सपोज उसका नेम हमने दे दिया राइट एंड सर्च इन बाइनरी फाइल, राइट. द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू import our pickle module because we are working on a binary file, and in order to read and write the data from a binary file, pickle module का यूज करेंगे. Then we have to define a function. Now let's suppose to create a binary file in which we want to write the data, right? उसके लिए हमने कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है? write function. This is an identifier, तो यहाँ पर आप कोई भी यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम ले सकते हैं, बट मेक श्योर उसमें स्पेसेस ना हो, स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, इट विल नॉट स्टार्ट विद द डिजिट. ये सारे रूल्स भी आपने यहाँ पर फॉलो करने हैं. नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ओपन आवर बाइनरी फाइल, एंड द सिंटेक्स फॉर दिस इज this f is the name of file handle or you can say your file object. यहाँ पर आप कोई भी file object का नेम लिख सकते हैं. Then my open function will take two arguments. First one is the name of the file. Now since we are creating our binary file, तो यहाँ पर हम कोई भी नेम दे देते हैं. Let's suppose student details. अगर इस नेम से ऑलरेडी फाइल होगी तो then it will override the content, otherwise it will create that file, and we have to open this file in WB mode. WB means we have to write the data in our binary file. You can use the syntax of with statement also. Now after that, अब मुझे ये नहीं पता कि कितने students का डिस्प्ले कराना है, तो we will take this input from the user. कि यूजर जितने रिकॉर्ड्स एंटर कराना चाहे उतने वो रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, पूरी लिबर्टी दे देते हैं, राइट. अब मुझे क्या क्या कराना है बच्चे? रोल नंबर and then name. For roll number, int and then input, or here I am writing enter roll number, right? And then name, input, enter name. दोनों चीजें एंटर करा ली. अब if you are doing this with the help of list, तो यहाँ पर हमने लेट सपोज एक वेरिएबल लिया डेटा, लिस्ट में हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? रोल नंबर एंड देन नेम. मीन्स जो यूजर ने एंटर किया रोल नंबर एंड नेम, उसकी मैंने क्या बना दी? एक लिस्ट. नाउ आई हैव टू राइट दिस लिस्ट इन अ बाइनरी फाइल. फॉर दैट आई हैव टू राइट pickle डॉट
dump function is used to write the data in a binary file. अब dump function 2 arguments लेगा. फर्स्ट वन इज मुझे राइट क्या कराना है, अपनी लिस्ट डेटा किस फाइल में राइट करानी है. देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फाइल हैंडल, दैट मीन्स एफ ए. अब एक रिकॉर्ड एंटर हो गया, अब यूजर सेकेंड रिकॉर्ड भी एंटर करना चाहेगा. तो दैट मीन्स वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, यस एंड देन नो, राइट. अब यूजर यहां से कुछ भी इनपुट देगा, दैट वी आर स्टोरिंग इन द वेरिएबल ch. Now if ch in capital N और small n, तो that means break loop से बाहर. अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कैपिटल N और स्मॉल n मीन्स n के लिए वो कुछ भी प्रेस करे, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल. उसके अलावा अगर वो कुछ भी प्रेस करेगा, डेजर्ट स्पेस एक्सेप्ट मीन्स y के अलावा n के अलावा कुछ भी प्रेस करेगा, मेरा ये लूप चलेगा, राइट. अगर आपने स्पेसिफाई ही करना है कि yes के लिए ही चले, तो देयर यू कैन राइट द कंडीशन. अब उसके बाद लूप से बाहर आने के बाद क्या करें, अपनी फाइल को क्लोज कर दें, वेरी सिंपल. तो दैट मीन्स अब हमने अपनी फाइल में डेटा राइट करा दिया है. इसको एक बार रीड करके चेक करें कि वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट. ठीक है, अब हमने रीड नेम से फंक्शन बनाया, सेम सिंटेक्स. नाउ वी विल ओपन आवर फाइल इन रीड मोड एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द ट्राई एंड एक्सेप्ट फ्लो. इफ वी विल नॉट यूज दिस ट्राई एंड एक्सेप्ट, तो our exception will get generated. कौन सी exception? EOF error, end of file. What do you mean by this? कि जब हम बाइनरी फाइल में डेटा को राइट कर देंगे, तो जब हम उसमें से रीड करा रहे हैं, डेटा रीड करेंगे, तो वो 1 by 1 रिकॉर्ड रीड करेगा. एट द एंड वो मेरे को EOF error exception जनरेट करके देगा. सो इन ऑर्डर टू कि वो एक्सेप्शन जनरेट ना हो, वी आर हैंडलिंग द एक्सेप्शन बाय यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. देन while and then true. Now you can take any name of variable here. Let's suppose I'm writing rec equals to. अब यहाँ से मुझे डेटा क्या करना है, रीड करना है. For that we are having load function. Here you have to write the name of the file handle, right? अब मैं सिंपल इसको क्या करा रही हूँ, print except. If you will not write the name of exception here, that is end of file error, so it will handle all types of exceptions. If you will not means if you will write, so it will handle that particular exception only, otherwise it will handle all types of exception. तो हम यहाँ लिख देते हैं end of file error. उसके बाद मुझे अपनी फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है, राइट. Now let me call these two functions, write and then read, right. Now let's execute this program. अब यहाँ पर हमने लेट सपोज रोल नंबर एंटर किया 1 और नेम एंटर किया लेट सपोज नेहा. मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2, नेम निशा, मोर रिकॉर्ड नो, राइट. तो अब यहाँ पर देखो यू कैन सी वो दोनों रिकॉर्ड्स मुझे रीड होकर के मिल गए. दैट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट. अब हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के सेकेंड पार्ट पर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्च फॉर अ गिवन रोल नंबर. जब हमने फाइल में डेटा राइट कराया रोल नंबर 1 2 3 4 5, अब उसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर रोल नंबर का नेम सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्च करूं रोल नंबर 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे सिर्फ क्या डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले द नेम ओनली. अभी तो कंप्लीट रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया, नाउ आई हैव टू डिस्प्ले ओनली नेम. एंड इफ नॉट फाउंड, तो वी हैव टू डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज. इस पर बाद में आएंगे, पहले सिर्फ इतना काम करते हैं. वी हैव टू सर्च फॉर अ गिवन रोल नंबर. इसी में ही चेंजेस कर दें. अब इन प्लेस ऑफ रीड लेट्स मेक इट मीनिंगफुल. अब फंक्शन का नेम हमने क्या ले लिया, लेट्स सपोज सर्च. सेम वी हैव टू ओपन द फाइल इन रीड मोड. अब यहाँ पर एक यूजर से इनपुट ले लें कि आपको कौन सा रोल नंबर सर्च करना है, वो भी तो मुझे पता होना चाहिए. रोल नंबर इंट इनपुट एंटर रोल नंबर whose record you want to search या whose name you want to display, right. अब वो जो यूजर ने एंटर किया होगा रोल नंबर, that will get stored in the variable roll number. Now see this REC, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे आंसर किसकी फॉर्म में मिला, लिस्ट की फॉर्म में. तो what does this mean कि here this is at index 0 and this is at index 1. तो can I means are you understanding this point कि if I will write REC means जहां पर हमने डेटा रीड करा है,
0 इंडेक्स पर मुझे क्या मिल रहा है, रोल नंबर, एंड एट 1 इंडेक्स वी आर हैविंग द नेम, राइट। सो जहां पर मैं रोल नंबर से कंपेयर करना चाहती हूँ, आई कैन राइट 0 इंडेक्स, एंड फॉर नेम आई कैन राइट 1 इंडेक्स। और वो मुझे कहां से पता लगेगा, जो लिस्ट मैंने एंटर कराई है। हियर रोल नंबर इज एट इंडेक्स 0 एंड नेम इज एट इंडेक्स 1। सो यहां पर हम कर देते हैं कंपेयर, इफ REC ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू रोल नंबर। REC मीन्स वो लिस्ट रीड आउट होकर के मेरे पास आ गई। अब मैं उसका 0 इंडेक्स का एलिमेंट चेक करूंगी कि वेदर दिस इज इक्वल टू द रोल नंबर जो यूजर ने सर्च करना उसके इक्वल है कि नहीं है। अगर है REC तो मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया 1, कि मुझे सिर्फ क्या डिस्प्ले कराना है, उसका नेम, राइट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। रोल नंबर 1, नेम लेट्स सपोज नेहा, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2, नेम निशा, मोर रिकॉर्ड नो, राइट। अब मैंने लिखा एंटर द नेम, एंटर द रोल नंबर हुज नेम यू वांट टू डिस्प्ले। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया रोल नंबर 2, तो मेरे पास इसका नेम डिस्प्ले हो गया निशा। बट इन केस अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराऊं, एक ही नेम लिखा है, मोर रिकॉर्ड नो। अब मैंने यहाँ पर सपोज लिखा 5, वो 5 मेरे पास फाइल में रोल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर मुझे कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स, और एल्स पार्ट में तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज इफ नॉट फाउंड वी हैव टू डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज। अब उसके लिए इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट मी टेक वन वेरिएबल, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, राइट। नाउ सी दिस पॉइंट वेरी केयरफुल, इसमें काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। लेट मी राइट इट हियर। नाउ सी दिस वेरी केयरफुली, वी हैव असाइंड अ वेरिएबल, मींस एक वेरिएबल लिया फाउंड विद वैल्यू 0। अब स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0। अब जैसे ही मुझे वो रिकॉर्ड मिल गया, मैंने उसका नेम प्रिंट करा दिया, एट द सेम टाइम मैंने उस फाउंड की वैल्यू को क्या कर दिया 1 इनसाइड माय इफ स्टेटमेंट। नाउ वी विल बी हैविंग टू पॉसिबिलिटीज ओनली, आइदर द वैल्यू ऑफ दिस फाउंड वेरिएबल इज 0 और इट विल बी 1। 1 सिर्फ तभी होगा अगर मेरे को वो रिकॉर्ड मिल चुका है, बिकॉज तभी कंडीशन ट्रू है। इनसाइड द इफ मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है कि अगर वो उसे रिकॉर्ड मिल गया तो देन ओनली द वैल्यू ऑफ फाउंड विल बी 1, अदरवाइज वैल्यू ऑफ फाउंड विल बी 0। और जैसे फाउंड की वैल्यू 1 हुई, मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, अपनी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक मींस लूप से बाहर। अब रोल नंबर एक स्टूडेंट का एक ही होगा। अगर कोई ऐसी चीज डिस्प्ले करानी होती जो बार बार रिपीट हो रही होगी, सपोज स्ट्रीम के स्टूडेंट्स काउंट करने इस तरीके से, तो वहां पर मैं अपना ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। नाउ सी हियर, अब आफ्टर दिस ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक आई एम राइटिंग हियर इफ फाउंड डबल इक्वल्स टू 0। 1 के केस में तो मैंने नेम प्रिंट करा दिया। अब इन केस फाउंड की वैल्यू क्या है, 0। 0 सिर्फ कब होगा, अगर वो इफ ब्लॉक में नहीं गया, दैट मीन्स फाउंड की वैल्यू 1 नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स, उसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। तो कैन आई राइट द मैसेज हियर, सॉरी नॉट रिकॉर्ड फाउंड, राइट। क्लियर, आई थिंक दिस इज। नाउ वी हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट दिस अगेन। रोल नंबर 1, नेम लेट्स सपोज निशा, रोल, हाँ अब मोर रिकॉर्ड यस में मैंने 2 प्रेस कर दिया तो भी ये चलेगा, बिकॉज ब्रेक मैंने कहां पर लगा रखा, सिर्फ एन के केस में। एंटर रोल नंबर 2, नेम लेट्स सपोज नेहा, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 3, नेम पूजा, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 4, एंटर नेम लेट्स सपोज प्रियंका, ठीक है, मोर रिकॉर्ड नो। अब एंटर रोल नंबर हुज नेम यू वांट टू डिस्प्ले, लेट्स सपोज हमने एंटर किया रोल नंबर 4। अब 4 के करस्पॉन्डिंग नेम क्या है, प्रियंका, तो एज यू कैन सी उसने मुझे यहाँ पर नेम डिस्प्ले करके दे दिया। अब डेटा ऑलरेडी फाइल में मेरे पास है, इसको मैं कमेंट कर सकती हूँ इस फंक्शन को, राइट फंक्शन को, क्योंकि डेटा ऑलरेडी मैंने अपनी फाइल में राइट कर दिया। अब इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, अब सिर्फ सर्च फंक्शन कॉल किया। नाउ आई एम एंटरिंग द रोल नंबर 10 विच इज नॉट देयर इन द फाइल, तो अब ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करेगा, सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, राइट। ये हमने किया अकॉर्डिंग टू लिस्ट। अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर आपने करना हो, सिर्फ क्या चेंजेस करेंगे, एक एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर ले लें,
अब जहां पर मैं वो लिस्ट बना रही हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर लूंगी, डिक्शनरी में हमने लिख दिया लेट्स सपोज रोल नंबर इक्वल्स टू आर एंड देन डी, यहाँ पर हमने की ले ली नेम और इक्वल्स टू एन। अब जो भी यूजर एंटर करेगा रोल नंबर और नेम, मेरी वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। एट द बिगिनिंग माय डिक्शनरी इज एम्प्टी, ये हमारी डिक्शनरी की हो जाएगी, ये उसकी वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर मैंने अपनी क्या राइट करानी है, डिक्शनरी। अब जब मैं डेटा रीड करूंगी तो REC 0 नहीं, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है। विद द हेल्प ऑफ की आई विल एक्सेस द वैल्यू, तो सेम वैल्यू यहाँ लिखेंगे प्लस अब नेम को डिस्प्ले कराने के लिए मेरे पास की क्या है, नेम, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, नेम। सिर्फ इतना चेंज होएगा, और भी इसमें और कोई भी आपने इसमें चेंजेस नहीं करने। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि अगर मुझे इसको डिक्शनरी के थ्रू करना है तो उसमें मुझे क्या क्या चेंजेस करने होंगे। लेट मी रिपीट दिस अगेन। सबसे पहले डिक्शनरी लेंगे। अच्छा, डिक्शनरी के लिए आपको एक चीज और बता दें, फॉर एग्जाम्पल let me just open this. For example, here I have taken the empty dictionary. अब इसमें मैंने यहाँ पर क्या लिखा, let's suppose roll number right equals to 5. Now what it will check कि इस नेम से की ऑलरेडी मेरे पास डिक्शनरी में है या नहीं है। जरूरी नहीं है रोल नंबर लिखना, लेट सपोज हमने लिखा 1 और यहाँ पर लिख दिया लेट सपोज 1. So it will check whether this key is already there in the dictionary or not. If it is already there, तो it will update the value. अगर नहीं है तो ये की वैल्यू पेयर को यहाँ पर ऐड कर देगा मेरी डिक्शनरी में. Now here D is my empty dictionary. तो मैं एंटर प्रेस करके जब अपने डिक्शनरी को डिस्प्ले कराऊंगी तो एज यू कैन सी मेरे पास की ऐड हो गई है और ये उसकी वैल्यू ऐड हो गई, राइट. सेम केस हमारा इसमें इंप्लीमेंट होगा. एम्प्टी डिक्शनरी ली है, रोल नंबर और नेम मुझे इसमें एंटर कराने, और कहां पर चेंज करेंगे, हियर. अब इंडेक्स की हेल्प से मैं वैल्यू को एक्सेस नहीं करूंगी. इन डिक्शनरी वी हैव टू एक्सेस द वैल्यूज यूजिंग कीज. सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस अगेन. इस राइट फंक्शन को अब हम वापस से कमेंट हटा देते हैं. रन. रोल नंबर लेट सपोज 1, नेम लेट सपोज नेहा, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2, नेम निशा, मोर रिकॉर्ड नो, रोल नंबर जो सर्च करना लेट सपोज 2 एंड देन नेम मुझे इसका डिस्प्ले होकर के आ गया दैट इज निशा, राइट. एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं जो रिकॉर्ड मेरे पास डिक्शनरी में ना हो. रोल नंबर 1, नेम लेट सपोज अगेन नेहा, निशा, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2, नेम लेट सपोज सोनिया, मोर रिकॉर्ड्स नो, रोल नंबर मुझे अब सर्च करना है 14. सो आई एम गेटिंग द मैसेज नाउ कि सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, राइट. सो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये प्रोग्राम प्लस इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है दैट आर crystal clear now. And if still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying.